क्यों गई? देखिए, ऑलरेडी एक श्राइन्स एंड प्रियंशा चला यहाँ पर हिंदू श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल के ड्राफ्ट के ऊपर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में काफी चर्चा और परिचर्चा हुई है। अब उस हिंदू श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल की उसकी क्या कहते हैं कंटूर्स क्या होंगे, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और उसका एक कानूनी, वैधानिक और संवैधानिक उसकी एक पारदर्शिता और उसकी आउटरीच कितना होगी, उस पर डिस्कशन डिबेट जरूरी है। मेरा मानना है कि सूफिज्म, इंक्लूशन और सबका साथ सबका विकास, ये कश्मीर ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है। कश्मीर ने ना सिर्फ, मैं इसे सनातन या हिंदुज़म को बोलूं, बल्कि एक जो सूफिज्म का भी एक स्प्रिंग बोर्ड है वो कश्मीर रहा, जिसने पूरी दुनिया को एक पीस का, शांति का और सोशल इंक्लूशन का मैसेज दिया है। पिछले चंद दशकों में ये फंडामेंटलिज्म, ये आपस में इंतशार, आपस में डिवीजन का ये मैसेज और खासकर जो धार्मिक संस्थानों पे जो अटैक हुआ, ये बहुत बड़ा विषय है। किसी भी हो, किसी के भी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के अपने चर्च हो, या चाहे फिर कश्मीरी पंडित्स के, हिंदूज के श्राइन्स एंड टेम्पल्स हो, एंड इवन मुस्लिम बिरादरी में भी किसी कम्युनिटी का अगर कोई धार्मिक संस्थान हो, ये बहुत बुरी बात है। हम हिंदुस्तान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे एंटेगोनाइज करते हैं, उसको इम्बाइब करते हैं, और कश्मीर में भी वो इम्बाइब हो। यही हमारा एथॉस है, यही हमारा एक कॉमन कल्चर है, यही हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है। आपके ध्यान ले जाऊँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने इस डिवीजन को अपोज करता हुआ जो उनका वो जो स्पीच है, उस स्पीच को मैं फिर दोबारा आपके सामने रिप्रोड्यूस करूँगा कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव ए कॉमन हिस्ट्री, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव ए कॉमन कल्चर, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव बिहाइंड ए कॉमन लेगेसी ऑल्सो। तो ये कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन लेगेसी को हट के ये जो एक नैरेटिव, मैं नैरेटिव तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक मिसलीडिंग नैरेटिव, एक डिविसिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। हम सभी को इसको डिस्पेल करना, हम सभी को इसको तोड़ना, हम सभी को इसको रियल आउट करना और एक इंक्लूसिव एक सिस्टम पॉलिटिक्स है, हम सब इसके Mr. Sharma, you have accused I have a national question conference regarding the Sufism. You talk about the Sufism and you talk about the religious part. When we go through the background of Kashmir history, we have a vast background with Sufism and this Rishi Munis. Exactly. There are so many canvases when we talk about the different part of especially the other stages of Kashmir. Absolutely. They believe that this stage has been totally evacuated now, and there are some people, those who believe that this is not come up. But you said that the connectivity is very close and very near to the all people of religion. How do you say that? I started my keynote address on the very much cardinal point that Kashmir will be a cradle of, a moot point of the confluence of all the thoughts. You see, I personally believe that God is one. Your way may be different, my way may be different. This is what Kashmir taught to each and everybody and to the world across. Let me take you back to that Tara Shiko's, that his biography, that is Majmaul Bahri, the confluence of Vedas, Upanishads and the scriptures of Quran also. The problem is that Aurangzeb's divisive narrative stole a show over that Tara Shiko's Majmaul Bahri. So this is what Kashmir encapsulates. I said, and this is what the Bharat Sarkar said, सबका साथ and सबका विकास. It never said विकास of a particular religion, particular sect or of a particular community. This is what Kashmir has to stand for. This is what Kashmir stands for. Mr. Sharma, you have accused National Conference of being complicit in the killing of their own workers. Can you elaborate on that? How are you basing this allegation? Are you agreeing with the number 10,000 you have mentioned that has been killed? और दूसरी बात, the BJP leaders, there were some ugly scenes in the assembly, but some of the BJP leaders have also targeted a tribal community regarding a certain thing in Jammu, and then they have also used very derogatory languages against each other. How do you see it? सर, इन एडिशन टू दिस आपने शांति लाने की बात की, बट रिसेंटली अभी मतलब दुखी खबर आई एक JOC के शहीद होने की इतला आई है इन्फिल्ट्रेशन में, और इसी तरह इनकाउंटर किश्तवाड़ किश्तवाड़ में इनकाउंटर लगातार जारी है। जम्मू जहाँ पे कभी मतलब दंगे फसाद वो चीज़ें नहीं दिखती थी, गैंग वार्स कल वो भी रिसेंटली देखने को मिले। तो क्या ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी जम्मू में शांति लाने की? जिस कम्प्लेक्सिटी की आपने बात की, जटिलता की बात की, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कहती है कि हमारे 10,000 वर्कर मारे। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो 10,000 वर्कर्स कब मारेंगे? दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के मारेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर, क्यों मारेंगे?
उसकी इन्वेस्टिगेशन की